Hello friends, greetings of the day. I am very much delighted to present a counseling lecture on the career path development of a fresh civil engineer from a raw civil engineer up to a successful project engineer. I am S.A. Behre and this lecture is basically planned for diploma engineers as well as degree engineers who wish to build up their career in construction industry. That means the corporate world as a professional. Actually, there are so many options one can opt for after the degree or diploma. For example, you can become a government engineer in PWD, irrigation, railways, and so many other fields. Or you can also become a researcher, or you can become a faculty member of a university or an engineering college, or you can also become your own business consultant after the services that you have to offer to the society as a consulting engineer, knowing well and then setting up of your own business as a consultant. But today's lecture, we are going to focus it on how can you become a successful project in charge or a project manager from the raw civil engineering degree holder or diploma holder, because it's a journey, a very long journey, and we will be discussing in details how can you lead your career to that particular destination. So let us go to the presentation. We have the presentation on career path to become project manager from a fresh civil engineer. So as I told that various professional career options, there are government sectors, government public sectors, government services, and the corporate companies, consultancies, and independent business. Now, in the government services, you have the Public Service Commission. Either it may be a state government public service commission for different states, like MPSC for Maharashtra Public Service Commission, Maharashtra state, or UPPSC for Uttar Pradesh. UPPSC means Uttar Pradesh Public Service Commission, or it may be CGPSC, Chhattisgarh Public Service Commission, and the central government, that is Union Public Service Commission, UPSC. So both these public service commissions, very often they have the vacancies either in the state level or on the national level, and they will advertise those vacancies for which a written test or examination is conducted. Nowadays, the nature of that examination has become only MCQ type, multiple choice questions. Earlier it was subjective question papers, and there were number of papers also, 7 to 8. Nowadays the papers are also reduced in number, only 3 or 4 papers, and all of them are multiple choice question papers. And then after getting passed into this theory exam, you will be interviewed. Then there will be a panel of interviewing members, और आपको वहाँ जाके मुंबई में अगर आप महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन क्लियर करते हो या यूपीएससी अगर क्लियर किया हो तो यू हैव टू गो टू न्यू दिल्ली, and there will be an interview. So after getting successful in interview also, you will be recommended by these public service commissions to the government, central or state, and then आपके यथावकाश ऑर्डर्स निकलेंगे और उसके बाद आपको उस पर्टिकुलर जगह पे ज्वाइन होना होता है. So public sector undertaking is the second career option, PSUs. For example, in our country there are Navaratna companies, SAIL, Steel Authority of India Limited, ONGC. There may be so many. 9 कम से कम तो नवरत्न कंपनीज हैं, और उसके बाद भी बहुत सारे अच्छे अच्छे गवर्नमेंट जिसको अंडरटेक करती है उनको कहते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग. In this, generally the entry nowadays they have made it a gate qualified score. मतलब वैलिड गेट स्कोर अगर आपके पास है तो वो अगर चाहते हैं वो अपनी टेस्ट कंडक्ट करना तो वो अपनी टेस्ट कंडक्ट करते हैं, या डायरेक्टली ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर you will be interviewed and you will get a job in those PSUs.
नीचे के दो मैं पहले डिस्कस करता हूँ, कंसल्टेंसीज और इंडिपेंडेंट बिजनेस। कंसल्टेंसीज, देर आर सो मेनी कंसल्टेंसीज, डिजाइन कंसल्टेंसीज और ए पर्टिकुलर स्पेशलिस्ट सर्विस। फॉर एग्जाम्पल, अगर केवल सर्वेइंग का कंसल्टेंसी है, अगर ओनली पाइप लेइंग का कंसल्टेंसी है, या ओनली डिजाइन आरसीसी स्ट्रक्चर्स, डिजाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर्स, या ओनली डिजाइन ऑफ वाटर टैंक्स। One of my friends was working only in a company which was design of water tanks. So ऐसे बहुत सारे specialist consultancies भी आजकल हैं. You can get into that, and after getting a chance you can also become your own business setter, so that वही consultancy का experience आपके पास आने के बाद उसी टाइप की consultancy आप अपनी खुद चला सकते हो, जो हमने लास्ट में लिखा है इंडिपेंडेंट बिजनेस। कंसल्टेंसी का एक इंडिपेंडेंट बिजनेस हो सकता है, या फिर आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं। तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। डिप्लोमा लेवल के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको थोड़ा कम अमाउंट का रजिस्ट्रेशन मिलता है, मतलब यू कैन डू ए प्रोजेक्ट ऑफ अबाउट 25 lakhs और 50 lakhs एट द मोस्ट। और डिग्री सिविल इंजीनियर जो लोग होते हैं उनको दे मे गेट मोर देन 50 lakhs, इवन 1 crore। और जैसे जैसे आपका वर्क डन का रिकॉर्ड इम्प्रूव होते जाता है, देन योर क्लास ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो गोज ऑन इम्प्रूविंग। सो क्लास 7, देन क्लास 6, देन क्लास 5, देन क्लास 4, 3, 2 and 1। अगर आप क्लास 1 गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर बन जाते हो तो आप बहुत ही बड़ी हस्ती बन जाते हो, और आपके पास कोई भी काम 1000 करोड़, 500 करोड़, 200 करोड़, 400 करोड़ इस तरह का काम मिलता है। एंड आपका प्रॉफिट भी वैसे ही, मतलब सालाना कम से कम 25 करोड़ आप कमा सकते हो। दैट मीन्स ऑल दीज थिंग्स, they are the career options. These are all professions that one can choose after getting a degree or diploma. लेकिन आज का जो हमारा काउंसलिंग है, आज का हमने लेक्चर जो प्लान किया हुआ है, वो मेनली तो हमने इस कॉरपोरेट कंपनीज के लिए किया। कॉरपोरेट कंपनीज में बहुत सारी कंपनीज की लिस्टिंग आप देख सकते हो। फॉर एग्जांपल, देयर मे बी सम लिमिटेड कंपनीज, देयर मे बी सम प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज like Gammon India or Afcons or Hindustan Construction Company or Singla, or there may be Shapurji Palanji. So many companies are there which are doing very good in the country, and many of the works of our national importance or state importance have been done by some of these companies. For example, the Konkan Railway was done by Afcons, and now the bullet train which is coming up, that is once more the brand name which is very very popular in our country, that is L&T. They have got the majority of work of bullet train. So corporate companies, if you have a desire, a dream to become a project manager either in L&T or Afcons, then what should be your journey here onwards? Assuming that you are right now in the final year, and very soon after 2-3 months you will get your diploma or degree, and you will enter into the private corporate world, and then you have to plan your own journey to become a successful project manager. This may take for some people 5, 6, 7, 8 years, 10 years, 20, 15 or 20 years, and many say people may not become in the lifetime even a complete independent project in charge. Now, what are the reasons for that? Today's lecture focuses only on those qualities. So let us go to the next slide. These are the corporate companies which are working in various fields. Some are infrastructural corporate companies, like Gammon is working in infrastructures, Afcons is working also in infrastructures, or L&T is infrastructural company. There may be specialist constructions. These infrastructural companies have also some wings. They are operating in specialist constructions like tunnels. And the next is the builders. That means you will be seeing so many builders even in Aurangabad or even in any place. There will be number of builders available. They are basically building either isolated bungalows or
twin houses, row houses, or apartments or multi-storied apartments. So these are the builders. They will be basically building residential buildings, or if sometimes they are given the contracts of a particular type of a construction like a hotel or hospital, then they will also be going for that. Then the corporate companies, some corporate companies have the core function as designs. For example, Kolkata based company, there is one DCPL, Design Consultant Private Limited. They design all the structural designs of the huge multi-storied buildings, as well as they go for the detailing of it. Similarly, in Pune, you will find YS Sane consultants. They are designers, structural designers. In Mumbai, basically the head office is in Karnataka, Bangalore. They are Stoop consultants. In Mumbai also they are having a regional office. So designers, they design the buildings, the structural design. There are two types of actually designs of the building. One is the structural design, which is commonly understood by all. Very few people know that there is also a functional design of building. Generally, this area is a monopoly of architects, that is believed. But it's not like that. A civil engineer can always make himself expert in functional design of a building, like a hospital or a hotel or a stadium or any public building for that matter. You can design based on the functions which are carried out in that building, and such that the people who are actually performing that function and who are coming to view that, for example, the spectators in a stadium, the spectators in a theater, they are also part of that building, and for them also there should be some comfort levels defined, and functionally how can that be achieved in a building. For that, design consultancies are there. So there are so many corporate companies. Now if you want to go into the infrastructural company, then you have to have certain knowledge of what they actually expect from you. That means no corporate will be hiring a simple civil engineer or a diploma engineer merely just because he is having that qualification. Even if you are distinction or you have come first in the board of technical education or examination, or even if you are first in university rank, that is not only going to help you. Maybe that the sound knowledge of a theory is reflected by your performance, but employability is something different. Now, what employability demands, you can see in the slide that you have to have a confidence, adaptability, presentation skills, stress management, teamwork, time management, attitude, accountability. Now, each one of these words can be explained at least 2 3 minutes. And if we say I go on doing that, it will be a very lengthy lecture. Therefore, I am not going into details of every term of it, but just I will tell you what you require to begin with to have employability. That means you are a brand new civil engineer. You should have enough confidence level. You should be able to work in a team. You should be having interpersonal skills. You should not have any arrogance. That means you should have a proper attitude. You should be also respecting your time, and therefore, if at all you are given an assignment which is expected to be shown by you to your boss in the morning next day, you should be doing that positively. So the corporate companies to begin with, from fresh civil engineers, they only expect minimum qualities, so that they think that yes, I can go with this particular person for 1 2 3 4 5 6 months. After getting trained, he will definitely come up to my expectations. Next is the skills. Now there are so many skills. Again, employability and skills, there will be very little line of demarcation in between them. Skills, you should have personal skills, interpersonal skills, communication skills, soft skills, IT skills, and of course, technical skills. The sound knowledge is yet another parameter
that the companies look for in a prosperous civil engineer. Sound knowledge of what? Sound knowledge of our civil engineering. Now, you can ask here that we are going to study all 40 say subjects in civil engineering every year, about 10 subjects or maybe 30-35 subjects, and it is very difficult after getting degree or diploma that a particular civil engineer is perfect or very expert in all the subjects. That is also not expected by the corporate companies. If you are saying that, and if you are working for that, if you are taking pains to make yourself master at every subject, it's very difficult and it is not going to happen also. Now, for that, what is the sound knowledge? Fundamental basic knowledge. That means you should be very good in structural engineering. Fundamentally, it is not expected that you should be able to design a very huge slab or a pile foundation structurally, or a mat foundation or a raft foundation. But you should be able to know what is the bearing capacity of a soil on which we are going to rest our structure. What should be the size of a beam normally? If at all there is a huge span of a slab, then how can I go for minimum depth of the beams? So sound knowledge means like that. Structurally, you should be having the basic fundamental knowledge, and all the definitions should be always with you very clear. What is stress? What is strain? What is say Poisson's ratio, lateral strain, longitudinal strain? What are the maximum stress carrying capacities that the Indian Standard Code permits? IS 800, IS 456. You should be well versed with these standards. That definitely companies expect. Again, you are not expected to deliver सारे के सारे क्लॉजेस आईएएस में जैसे के जैसे लिखे हैं वैसे पूरे के पूरे आने चाहिए, ये भी कंपनी एक्सपेक्ट नहीं करती। लेकिन फला एक चीज है, फॉर एग्जांपल स्लैब के कॉर्नर में अगर इनफोर्समेंट डालना है तो उसका रीजन क्या होता है, डायगोनल बार्स उसमें क्यों डालते हैं, नेगेटिव शियर कहाँ आ सकता है, हॉगिंग मोमेंट कहाँ आ सकता है। दैट मीन्स दैट इज अ कंसेप्ट एंड कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, यू शुड नॉट बी मिसिंग इट आउट व्हेन यू आर आस्क्ड। और बाकी जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो काफी सारे एट्रीब्यूट्स है, इसकी बहुत बड़ी लिस्ट है, हम एक एक करके आगे जाने वाले। एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है एक कैरेक्टरिस्टिक्स, आपके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक चीज को आप भूलो मत कि मैं अगर किसी कंपनी का ओनर हूं या एचआर का हेड हूं और मैंने एक 10 लोग इंजीनियर का इंटरव्यू मैंने लिया है और मेरे पास 2 वैकेंसीज है और 10 में से मेरे को 2 लेने हैं, तो कौन सी वो चीजें हैं जो मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट समझूं। खाली मार्क्स के ऊपर भी मैं तो फिर इंटरव्यू लेने की भी जरूरत नहीं, अगर सबके 10 के 10 मार्क्स में वो मेरे पास है तो पहले 2 जो नंबर फर्स्ट और नंबर सेकंड, आई कैन ऑल्सो हायर देम। लेकिन ये ऐसा कंपनीज करते नहीं, बिकॉज बिकॉज एक आदमी जब कंपनी में आता है तो उसके साथ काफी सारे गुण, मे बी दैट दे आर गुड एंड मे बी समटाइम्स बैड। मतलब फॉर एग्जाम्पल एक बहुत ही ब्रिलियंट बंदा है लेकिन चेन स्मोकर है, तो वो जैसे हमने रिक्रूट किया तो वो उसकी वो बैड हैबिट भी साथ में इस कंपनी में आ गई। अब उसका क्वालिटी, उसका स्किल, उसका एक्सपर्टीज लेवल तो हमको चाहिए, लेकिन उसकी ये जो बाकी की आदतें हैं, या बहुत बातूना स्वभाव होता है किसी का, बहुत ज्यादा टाइम पास करने का, तो इन सारी चीजों को हमको देखना होता है। दैट इज व्हाट एग्जैक्टली एचआर पीपल लुक एट। इंटरव्यू, एचआर वाला जो इंटरव्यू होता है वो तो कभी भी टेक्निकल नहीं होता। टेक्निकल पैनल अलग होता है, एचआर पैनल अलग होता है। एचआर विल बी ऑलवेज इंटरेस्टेड इन मेकिंग द प्रेडिक्शंस अबाउट द ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ ए पर्सन, ऑफ एन इंडिविजुअल। तो ये एट्रीब्यूट्स के इसमें हम वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। सो गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। वी हैव वंस अगेन इलैबोरेटेड दैट एम्प्लॉयबिलिटी। इसकी डेफिनेशन बहुत सारे सोर्सेस में क्या क्या दी है, 2-3 मैंने यहाँ एनलिस्ट की हुई, आप और भी ज्यादा खोज सकते हो। इट इज अ सेट ऑफ अचीवमेंट्स, अंडरस्टैंडिंग और पर्सनल एट्रीब्यूट्स that make the individuals more likely to gain employment and become a satisfied person in that chosen career। मतलब एक तो है कि मैंने BE सिविल कंप्लीट कर लिया,
इसका मतलब है कि मैं सिविल इंजीनियर बन गया, इसलिए सिविल इंजीनियरिंग की जहां जहां जगह है, वैकेंसी है, वहां मैं फिट हो सकता हूं। लेकिन यही काफी नहीं है। एम्प्लॉयबिलिटी, मैं आपको जॉब कब दूं? तो जब आप उसके काबिल हो, एम्प्लॉयबल हो। मतलब आपने ठीक है अचीवमेंट कर लिया, व्हाट इज दैट, यू हैव गॉट सक्सेसफुली इन ऑल दोस 4 years एग्जामिनेशंस एंड यू हैव कम अप विद फर्स्ट क्लास और डिस्टिंक्शन, ओके ठीक है। लेकिन आजकल ये देखा जाता है कि नॉलेज थियोरेटिकली बहुत अच्छा है, बट वेन एवर आस्क्ड to apply it in a practical situation, even rankers of IIT may fail. तो अंडरस्टैंडिंग एक बहुत अलग बात होती है कि प्रॉब्लम क्या है, इसको रूट से, जड़ से समझो, और उसके बाद अगर आपको कारगर वे, मतलब एक ऐसा रास्ता पहले से जो आपने ट्राई किया हुआ है और सक्सेसफुल अगर पता है तो यू एम्प्लॉय दैट। अगर नहीं है तो फिर हिट एंड ट्रायल बेसिस पे भी जाना पड़ता है। हिट एंड ट्रायल मे गिव यू सो मेनी ऑप्शंस, 1 2 3, उसमें से भी कौन सा मैंने चूज करना है, मिनिमम रिसोर्सेस वाला, मिनिमम टाइम लेने वाला, मिनिमम पैसे वाला, मिनिमम लोग लगेंगे ऐसा। सो देर आर अगेन सम criteria on which I can filter 1 or 2 or ideas that may come up in my mind. तो ये सब एम्प्लॉयबिलिटी को आपको एक एक गुण बताने, मतलब यू कैन बिकम एम्प्लॉयबल इफ यू आर possessing such attributes, and therefore employer will always test you like that कि ये बंदा मैंने ले लिया तो ये कहाँ कहाँ यूजफुल होगा, ये प्रॉब्लम सॉल्वर है या डेयरिंग करता है या किसी भी चीज को एज एन एडवेंचर, एज ए चुनौती ले लेता है, या डरने वाला है, या दूसरों के लिए ये काम छोड़ के चला जाएगा, शोल्डरिंग आर्म जिसे कहते हैं, मतलब अपनी जिम्मेदारी से मुकरना। सो ये चीजें ऐसा नहीं होना चाहिए। देयरफॉर द पीपल हु आर having a positive attitude of working, of attempting to work, maybe that you are getting a failure, everybody cannot become successful at every adventure, therefore it is assumed कि आप कैसे इसको लेते हैं। Secondly, employability also can be defined as a capability of getting hired and to be able to fulfill all work in the job. मतलब जॉब कितना है, जॉब जो भी है आपका, सुबह 9 बजे से ही 5 बजे तक जॉब समझने वाला इंजीनियर है तो पहले ही वो एम्प्लॉयर जो है सोचता है कि ही इज नॉट ए गुड पर्सन देन, क्योंकि कभी कभी कॉन्क्रीटिंग रात के 9 बजे 10 बजे 11 बजे तक भी चालू रहता है, और ये कहने लगा कि मैं 5 बजे छुट्टी हो गई, मेरी 6 बजे छुट्टी हो गई, आई एम गोइंग, दैट इज नॉट द फुल वर्क दैट ही इज डूइंग, and therefore his getting hired by the employer, that probability reduces. So employability is so many things, that is not only one thing. आजकल तो कम्पिटिटिव मार्केट इतना हो गया है, ग्लोबलाइजेशन के कारण बाहर की कंपनियां इधर आती है, हम भी बाहर जा सकते हैं। देयरफॉर एम्प्लॉयबिलिटी का जो नेचर पहले हुआ करता वो अब सब बदल गया है, उसमें स्किल्स काफी मात्रा में बढ़े हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल पीपल डिग्री इंजीनियर हु इज आल्सो एन एमबीए, बीई प्लस एमबीए, सो 2 things in 1 person। तो एम्प्लॉयर इसको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं कि मैं एक इंजीनियर, टेक्निकल नॉलेजेबल पर्सन भी इसमें आ रहा है और साथ ही एक मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटर भी आ रहा है। दैट मीन्स स्किल आपको बढ़ाना है, एंड देयरफॉर कॉर्पोरेट्स पीपल नाउअडेज दे आर लुकिंग फॉर नंबर ऑफ स्किल्स as many as possible accumulated in only one personality। इसीलिए आपको अपने आप को ज्यादा एम्प्लॉयबल बनाने के लिए नॉर्मल, बहुत नेचुरल है कि आपको भी अपने स्किल्स का लेवल ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। नाउ व्हाट आर दीज स्किल्स, तो उसमें हमने क्लासिफिकेशन मोटे तौर पे किया है। ये मत समझो कि दिस प्रेजेंटेशन इज द फाइनल वर्ड ऑन द काउंसलिंग ऑफ ए फ्रेश सिविल इंजीनियर। आपको इससे भी अच्छा इंफॉर्मेशन का रिपोजिटरी इंटरनेट पे भी मिलेगा, काफी किताबें होंगी, बट दिस आई हैव ट्राइड टू एक्सट्रैक्ट much more information from different sources, and I have come up with the skills listed as engineering skills, soft skills, communication skills and IT skills। एक डायग्राम भी आप साथ में देख रहे हो इधर साइड में, that you have some skills
that are generated because of your experience, because of your training, because of your individual ability, या आपका ग्रोथ होता है जैसे जैसे। बहुत सारे लोगों का ग्रोथ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है जनरली, मतलब जैसे कि एक टीचर है फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग कॉलेज का, तो उसने पहला साल, दूसरा साल, पांचवा साल, 10वां साल व्यतीत किया इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाते पढ़ाते, और उसके बाद उसने अपना किताब नहीं लिखा, उसने अपना क्वालिफिकेशन इंप्रूव नहीं किया। अगर वो डिग्री है तो डिग्री रहा, मास्टर्स भी नहीं किया, मास्टर है तो मास्टर्स ही रहा, पीएचडी भी नहीं किया। तो इसको कहते हैं एक हॉरिजॉन्टल जर्नी। दैट मीन्स इट विल नॉट बी अपीलिंग टू द पीपल हु आर लुकिंग एट यू फॉर एक्सेलिंग। एक्सेलिंग करना मतलब क्या है कि हर आने वाले दिन में मैंने कुछ पाना है, नया कुछ मेरे अंदर मैंने सीखना है। बिकॉज वर्ल्ड इज फुल ऑफ नॉलेज, वर्ल्ड इज फुल ऑफ स्किल्स। अपने अंदर जितने स्किल्स है, अगर मैं उससे सेटिस्फाइड हो जाता हूं तो आई गेट कॉम्प्लेसेंट, मतलब मैं संतुष्ट हो जाता हूं। और संतुष्टि का एक डिसएडवांटेज ये है कि आप दूसरा नया कुछ सीखना बंद कर देते। देयरफॉर यू शुड बी ऑलवेज डिससेटिस्फाइड। और इंजीनियरिंग स्किल्स जो है वो तो काफी सारे स्किल्स हैं इंजीनियरिंग के, और सॉफ्ट स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स है। आजकल क्या है कि यू हैव टू इंटरेक्ट विद सो मेनी पीपल। अगर आपको कॉर्पोरेट कंपनी में इंजीनियर बनने के बाद क्लाइंट जो होता है जिसका कि काम आपकी कंपनी कर रही है, फॉर एग्जांपल इंडियन रेलवेज ने कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है आपके कंपनी को, तो इंडियन रेलवेज के बड़े बड़े उच्च अधिकारी आपके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। और वो इतने बड़े लेवल के होते हैं, या तो इंग्लिश में या जो भी लैंग्वेज कंफर्टेबल है उसमें वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, और आपको वो डिफिकल्टी महसूस नहीं होनी चाहिए उनके साथ इंटरेक्ट करने के लिए। देयर मे बी टू टाइप्स ऑफ दिस कम्युनिकेशन स्किल्स। यू शुड बी एबल टू कम्युनिकेट वर्बली एज वेल एज इन रिटन। राइटिंग में भी आपको बहुत सारे रिपोर्ट्स लिखने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्लाइंट ने आपके प्रोग्रेस ऑफ वर्क के बारे में नाराजगी जताई है, और उन्होंने एक बड़ा अच्छा खासा मेमो टाइप का लेटर आपको दिया है कि आज ये प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद 6 महीना हो चुका है, आपका जो गैंट चार्ट या सीपीएम पर्ट का जो चार्ट था वो आपका आज के डेट का प्रोग्रेस इतना होना चाहिए ये दिखा रहा है, जबकि एक्चुअल हम देखते हैं तो आप कम से कम 30%, 20% उसके पीछे हो, लैगिंग। तो व्हाट आर द रीजंस? तो आपको इसका जवाब देना है राइटिंग में, कन्विंस भी करना है, नहीं तो वो पेनल्टी करेगा आपको, मतलब आपका जो प्रॉफिट होगा उसमें से कुछ पैसा चला जाएगा। सो दिस शुड नॉट हैपन दैट एज अ लॉस टू द कंपनी। एट दैट टाइम यू हैव टू कन्विंस देम। तो आपके पास अच्छे खासे वैलिड रीजंस है तो उसको एनलिस्ट करो। यू हैव टू राइट अ वेरी गुड रिपोर्ट सो दैट दोज क्लाइंट अथॉरिटीज गेट कन्विंस्ड। और रही बात ये आईटी स्किल्स की, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आजकल तो उसका बूम है। एवरी टाइम यू हैव टू यूज देम। कंप्यूटर है आपके, बहुत सारे सोशल मीडिया के आजकल जरिए हैं। ऑल दीज थिंग्स शुड बी वेरी इफेक्टिवली यूज्ड बाय यू। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आई एम नॉट एबल टू यूज दिस पर्टिकुलर, क्योंकि उसके कारण आपका बहुत बड़ा काम एकदम 2 दिन का, 1 दिन का हो जाता है अगर वो स्किल आपने पजेस किया हुआ है तो। एंड दैट इज द बेनिफिट ऑफ द कंपनी। और ये कंपनी को बेनिफिट आपके जरिए मिलने वाला है इन फॉर्म ऑफ द एम्प्लॉय, एंड देयरफॉर एम्प्लॉय शुड बी वेरी मच स्किल्ड। और यही तो है कि आप ग्रो करते हो, जैसे जैसे आपको नया नया टेक्निक आया, नया स्किल आया, उसके लिए ट्रेनिंग दिया जाता है, एडवांस ट्रेनिंग भी दिया जाता है, रिफ्रेशर कोर्सेस होते हैं, उसको भी आपको जाना चाहिए। कॉम्पिटेंसी लेवल बढ़ानी चाहिए, नॉलेज, लर्निंग, ये सब आपका अपडेटेड होना चाहिए। अगर वो जंग खाया हुआ ज्ञान है बहुत पुराना, 20 साल का, 10 साल का पुराना, तो वो काम में नहीं आता है। एंड देयरफॉर जैसे हमारे इंडियन स्टैंडर्ड्स के कोड्स भी हैं, IS 456 when we studied it was of 1978, nowadays you are studying it is of 2000। तो कोड तक रिवाइज होते हैं कि भाई वो रीइंफोर्समेंट जो पहले बोला जाता था, अब जाकर के पता हो गया, अनुभव हो गया कि उसे थोड़ा कम भी डाला तो भी चलता है, चल जाता है। एंड देयरफॉर दे आर आल्सो रिवाइजिंग। हेंस द स्किल सेट possessed by an employee
is not going to be permanent, where actually it has to be vibrant. वो बदलते रहना चाहिए. Now, sound knowledge. Knowledge sound कब है? We have seen that there are people in the company who are of different fields. Engineering, general engineering, civil engineering. Though it is a company of infrastructures, basically working in civil engineering, लेकिन उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से भी लोग होंगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से. प्लांट जो होता है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लोगों के हाथों में होता है. इसका भी नॉलेज एक सिविल इंजीनियरिंग के पर्सन के नाते आपको इसलिए होना चाहिए क्योंकि यू आर गोइंग टू बी ए प्रोजेक्ट इंचार्ज, यू आर गोइंग टू इंस्ट्रक्ट द प्लांट पीपल ऑल्सो, यू आर गोइंग टू इंस्ट्रक्ट द मेंटेनेंस पीपल ऑल्सो. तो वो आपको सीधे सीधे शब्दों में बोला जाए तो दे शुड नॉट मेक यू फूल, आपको उल्लू नहीं बनाना उन्होंने. इसलिए आपको बेसिक तकनीकी जनरल इंजीनियरिंग क्या होती है वो मालूम होनी चाहिए. So this is the sound knowledge of general engineering. This covers many things. For example, materials engineering, electrical engineering, mechanical engineering, computer engineering. आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन ICT बोलते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. सो दीज आर जनरल इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ विच यू शुड हैव ए साउंड नॉलेज. उसके बाद जो प्रॉपर हमारा फील्ड है वो सिविल इंजीनियरिंग. इसको तो आपको ऐसे मास्टर करना है, वो आज जितना 4 साल में किया हुआ है उतना ही काफी नहीं होता. जैसे जैसे आपकी करियर में ग्रोथ होती है आपको सिविल इंजीनियरिंग एक अलग परिप्रेक्ष्य में दिखाई देती है, एक डिफरेंट व्यू पॉइंट से आप सिविल इंजीनियरिंग को देखते हो. देखना चाहिए भी. अगर आपने वो देखा नहीं तो आप अपने आपको इम्प्रूव करने से वंचित रख जाओगे. एंड दैट इज वाई sound knowledge of civil engineering which you have gained in your degree course or diploma course, that is ठीक, वो तो ठीक है, but that is not going to be the permanent knowledge, that is not going to be even sufficient. You should not be getting satisfied with that, क्योंकि अपडेटिंग बहुत होता है, नया नया हैंडबुक्स आते रहते हैं, नए नए किताबों की रिविजन्स निकलते हैं, IS कोड के नए नए रिविजन्स होते हैं, या बहुत सारा रिसर्च चलता ही रहता है, नए नए मटेरियल्स आते हैं, लो कॉस्ट के मटेरियल आते हैं. सीमेंट कंटेंट को कम करने वाला बहुत सारा रिसर्च हो रहा है, फ्लाई ऐश है, GGBS नाम का एक मटेरियल है, वो उससे बहुत सारे लोगों ने मिराकल्स करके दिखाए हुए हैं. So you should be knowing civil engineering and updating the knowledge of that civil engineering as and when the time changes. Next is about the management. Now management is a different branch of science, branch of knowledge. MBA है, DBM है, इसमें 2 डिप्लोमा होता है, या MBA मैनेजमेंट का डिग्री होता है. मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है कि जो सीखने के बाद ही आएगी ऐसा भी नहीं है. बिना सीखे हुए भी बहुत अच्छे अच्छे मैनेजर्स लोग होते हैं. जैसे कि एक क्रिकेटिंग कैप्टन, उसको भी मैनेजर बोला जा सकता है. एक बहुत बड़े होटल का मैनेजर, मतलब 5 स्टार होटल का मैनेजर, वो भी मैनेजर है. एक बहुत बड़ी कंपनी चलाने वाला मैनेजिंग डायरेक्टर जो होता है, MD, वो भी मैनेजर है. हमारा फैमिली घर जो होता है, घर चलाने वाली हाउसवाइफ, शी इज ऑल्सो है मैनेजर. सो मैनेजमेंट एक ऐसा साइंस है कि उसमें नॉट ओनली साइंस, उसमें बहुत सारी चीजें, प्रोबेबिलिटी भी आती है, साइकोलॉजी भी आती है, ह्यूमन बिहेवियर आता है, ह्यूमन नेचर आता है, या प्रेडिक्ट करने का जैसा कुछ भी नहीं है वो भी आता है. प्रेडिक्शंस जो 100% हम करते हैं, मे बी दैट यू आर very much true to the predictions, but sometimes the predictions go quite different way, and diagonally opposite you land in a very say wrong set of situation. तो मैनेजमेंट क्या है, ये एक नॉलेज इसका कैसे होता है. तो यू अगर आपको चाहत है तो आप DBM करो या MBA करो. ऑनलाइन प्रोग्राम आजकल बहुत सारे हैं. जैसे आपने डिग्री किया हुआ है सिविल, उसके बाद अगर आपको जॉब की जरूरत है, बेशक आप जॉब को ज्वाइन करिए, but don't stop improving your skill or improving your knowledge. You can have a distant learning in MBA and make yourself a graduate in management also. अगर ये नहीं है तो ठीक है, there may be some people of MBA qualification in your own company. वो कैसे काम करते हैं उनको जरा closely observe करिए. But howsoever you should be
always having a thirst of improving knowledge in these all areas. Management is one of them, another is economics. देखो इकोनॉमिक्स जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी चीज का बिना पैसे से कुछ भी नहीं होता। अगर एक 500 करोड़ का प्रोजेक्ट मुझे मिलता है कंपनी का ओनर एंड आई एम अपॉइंटिंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर इन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, तो उस प्रोजेक्ट मैनेजर ने ओनरशिप ऑफ द कंपनी लेनी चाहिए। मतलब ऐसा समझना चाहिए कि ये कंपनी अब मेरी ही है, ये प्रोजेक्ट मेरा है, जो भी पैसा लगने वाला है जैसे कि मेरे जेब से लगने वाला है। तब तक आपको इकोनॉमिक्स और फाइनेंस ये दोनों चीजें समझ में ही नहीं आती। ये दोनों चीजें अलग अलग है। एक तो बात है इकोनॉमिक्स जो कि जो कोई भी चीज मैं कम से कम लागत में कैसे करा लूं, दैट इज इकोनॉमिक्स, और उस लागत के लिए मैं पैसा कहां से लाऊं वो फाइनेंस। सो फाइनेंस कंपनी से पैसा मांगते रहना, मैनेजर एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर ओनर को बार बार हर दूसरे दिन हर तीसरे दिन फंड्स भेजो, हमको फंड्स भेजो, एक ना एक दिन वो कंपनी का ओनर जो है आपसे गुस्सा होने वाला। हाउ कैन यू मैनेज योर ओन फाइनेंसेस? आप अपना इकोनॉमी कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल बचत एक होती है, सीमेंट की बचत करते हो कि नहीं, स्क्रैप क्या करते हो स्क्रैप का साइड पर, स्टील की बचत कैसे करते हो। सो मेनी थिंग्स आर देयर दैट यू कैन इकोनोमाइज। मैन पावर रिडक्शन हमेशा बोला जाता है, लेकिन बहुत सारी चीजें मैन पावर रिडक्शन से होती है ऐसा नहीं है। एक दिन का जो पूरा खर्च है उसका एक अंदाजा, मतलब राइट फ्रॉम द फूड रिक्वायर्ड फॉर ऑल द पीपल ऑन द साइट, द चाय पानी का खर्च, लाइट बिजली का खर्च, इंटरनेट कनेक्शन उसका खर्च, टेलीफोन बिल, मटेरियल जितना लग रहा है, सीमेंट हो, स्टील हो, गिट्टी मतलब एग्रीगेट्स हो, सैंड हो, पानी, पानी का भी खर्च होता है, and the labor, payment of labor, payment of other company employees. So ये सब मिला करके एक दिन का I can have a calculation, और उसमें मैं ग्रे एरियाज आई कैन पॉइंट आउट कि इसमें थोड़ा मैं कम कर सकता हूँ, 10 रुपये के 9 कर सकता हूँ, 9 के 8 कर सकता हूँ। सो दैट इज दैट इकोनॉमाइजिंग। और ये फाइनेंसेस फिर इसी में से थोड़ा बहुत पैसा भी मेरे को मिल जाएगा, या फिर मुझे मांगना तो है ही, because if I am going to get the profit out of this, I will have to some invest also. और साउंड नॉलेज में करंट अफेयर्स की जानकारी, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने 2 महीना 3 महीना पहले सीमेंट का ऑर्डर दिया हुआ था और आज आपको देना है, तो आप वही रेट को मानकर चल रहे हैं, 300 रुपया 325 रुपये। आज के डेट में सीमेंट का रेट बढ़ गया होगा या कम भी हो गया होगा, एंड यू आर नॉट कीपिंग द ट्रैक ऑफ योर करंट अफेयर्स, यू कैन बिकम अ फेलियर। इसी को साउंड नॉलेज कहते हैं। Now these are various characteristics that a person should have. Companies look at these characteristics. वो क्या क्या है? सबसे पहला आता है पंक्चुअलिटी। ये है टाइम का रिस्पेक्टिव। जो भी आप देखेंगे सक्सेसफुल पर्सन्स हो गए हैं इस दुनिया में, उन्होंने अपने पास जो टाइम था एक दिन का 24 घंटे का, वो सबसे ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज किया हुआ है। इसके ऊपर आप काफी अच्छे सक्सेस स्टोरीज, जैसे फॉर एग्जांपल स्वामी विवेकानंद हैं, जो कि 39 इयर्स के एज में तो मर भी गए इतना सारा ज्ञान लिख करके, या सचिन तेंदुलकर, he got the highest civilian award of our country, भारत रत्न, just at the age of 30-35. So ये सब टाइम का कैसे यूटिलाइज किया इन लोगों ने। हमारे पास भी हमने 24 घंटे ही हैं, सबके पास 24 घंटे हैं, उसमें से हम एक एक मिनट का यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं, टाइम पर चीजें क्यों हमारी मिस हो जाती है। सपोज आई एम गोइंग वेरी सिंपल एक्टिविटी दैट आई हैव टू रिपोर्ट टू द ऑफिस एट 9 AM इन द मॉर्निंग शार्प। बायोमेट्रिक मेरा 9 बजे वहां पर मेरे को उंगली दबाना है, और 9:01 पे वो लेट मार्क करेगा। तो हम बहुत बार ऐसी सिचुएशन में आते, सर एक ही तो मिनट लेट हो गए हैं सर। दिस इज नॉट द वे दैट यू कैन बिकम अ पंक्चुअल पर्सन। नेक्स्ट इज द कमिटमेंट। कमिटमेंट मीन्स जो चीज मैंने करनी है, मैंने मन में ठान ली, वो करके दिखाना है, दैट इज कमिटमेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक वनडे मैच को हमने जीतना ही है, ऐसा अगर किसी क्रिकेटर ने भले वो 9वां विकेट भी चला गया, तो लास्ट प्लेयर जो है उन्होंने कमिटमेंट अगर दिखाई तो दे कैन गो थ्रू दैट। सो कमिटमेंट मीन्स दैट इज द property or attribute in a
in an employee, which will be always proving for the company very very rewarding. On time the project will be completed, there will not be any delay. इसके कारण फिर कॉस्ट ओवररन भी नहीं होगा. टाइम ओवररन और कॉस्ट ओवररन ये दोनों भी पंक्चुअलिटी से मतलब अच्छा नहीं है कि पंक्चुअल अगर नहीं हो आप तो ये होने वाला है. टाइम बढ़ने वाला है आपका. टाइम जैसे बढ़ गया तो पैसा भी बढ़ेगा. सो these two things will be always discouraged by the company owner. Commitment for by the people who, which is shown by the project manager and all his team, that we will be completing this project in time. 6 महीने का प्रोजेक्ट है तो 6 महीने से पहले काम कंप्लीट करेगा. दैट इज कमिटमेंट. देन इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, दीज आर सम ट्रेट्स, दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एम्प्लॉइज. कंपनी मेरी है, कंपनी का एक एक मान लो कि कोई छोटा मोटा सामान भी अगर साइड पे ऐसा ही गिरा हुआ है, लोहे का पीस हो, कील हो कोई, या बहुत ज्यादा एग्रीगेट हमारा वेस्ट होता है, पूरे ग्राउंड पे फैला हुआ होता है, सैंड हो या, तो आई शुड केयर फॉर इट. इंटीग्रिटी जो होती है, आई शुड मेक माई सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. ऑल इंजीनियरिंग फंडामेंटल्स एंड एप्लीकेशंस, ये एक एट्रीब्यूट है. फिर कम्युनिकेशन स्किल्स, वर्बल स्किल्स, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो होते हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मेनी टाइम्स ऐसे प्रॉब्लम्स आन खड़े होते हैं कंपनी के रोजमर्रा के कामों में कि जिसका कोई सोल्यूशन आपको किताबों में नहीं मिलता, और ऐसा कोई सिमिलर सिचुएशन इसके पहले भी कभी नहीं फेस किया हुआ है. ऑल सडन डन यू फेस ए कंप्लीटली न्यू प्रॉब्लम एंड इन दैट यू हैव टू कम अप विथ अ सोल्यूशन. ट्रायल एरर होना चाहिए, अच्छा एक्सपीरियंस, लॉजिक होना चाहिए, कॉमन सेंस. सबसे बड़ा क्या होता है, किसी किताब में मैंने पढ़ा हुआ था कि इंजीनियरिंग की डेफिनेशन ये की जाती है कि इंजीनियरिंग इज ए कॉमन सेंस. जो प्रॉब्लम सॉल्वर होता है, ही इज सपोज टू बी द बेस्ट इंजीनियर. एंड देयरफॉर अगर कोई प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है तो उसको सॉल्व करके वो प्रोजेक्ट मैनेजर कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल आई विल टेल यू, किसी साइट पर अचानक से रायट्स, दंगा फसाद होने लगा, किसी साइट पर स्ट्राइक हो गया, किसी साइट पर पॉलिटिकल इश्यूज आ गए, या लेबर के दो गुटों में इतनी जमकर मारामारी हुई कि और ज्यादा कुछ टेंशंस क्रिएट हो गए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आ गए, कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, वो सब आ गए बीच में हरकत में. सो प्रॉब्लम्स बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के होते हैं. या हमेशा का प्रॉब्लम होता है सीमेंट का शॉर्टेज, सैंड का शॉर्टेज, स्टील का शॉर्टेज. हमारी साइट बहुत दूर दराज पर है, हिली एरिया में है, वहां डिलीवरी के प्रॉब्लम्स होते हैं, ट्रक लोड आता नहीं है जल्दी. तो कौन सा ऐसा सॉल्विंग का मतलब रास्ता मैं चुन लूं सो दैट आई कैन हैव द प्रॉब्लम कंप्लीटली मेकिंग इट जीरो. देन अप्रोचेबिलिटी, फॉर एग्जांपल टू द क्लाइंट, टू द ओनर, यू शुड बी अप्रोचेबल. आप नहीं तो क्या होते, बहुत बार जगह पे नहीं हो, फोन नहीं उठा रहे हो, कांटेक्ट किया, मेल लिखा तो मेल भी नहीं देख रहे हो, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए. रिलायबिलिटी, यू शुड बी ऑलवेज अ रिलायबल पर्सन. आपको एक बार बोल दिया कंपनी के ओनर ने कि भाई ये मेरे को चाहिए 2 दिन में, तो आप उसको 2 दिन में भली भांति निभाकर उसको दिखाना चाहिए कि ये आई हैव डन इट. यू आर देन रिलायबल. एंड दिस वर्ड इज वेरी डिफरेंट वर्ड, conscientiousness, that is a quality of wishing to do your work or duty thoroughly and completely. मतलब ये, मैं ऐसा नहीं है कि मेरा काम है तो मैं किसी को दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा हूं और उसको बोलता हूं या उससे उसी के ऊपर गुस्सा हो रहा हूं, जबकि मेरा काम है. आई एम नॉट टेकिंग इट एज माई ड्यूटी एंड आई एम जस्ट से डेलीगेटिंग that to some other person, and that is not a good thing. Again there are some say more attributes, one more list: flexibility, tolerance, then competence. Flexibility का मतलब है कि you should not be rigid, you should be always open. आपका कोई subordinate है, he also can give you a suggestion. आपका बॉस जो है, आपका जो रास्ता आपने चूज किया है उसको बोलता है कि नहीं ये मत करो, दूसरा ये सोल्यूशन है, उसके लिए काम करो. तो यू शुड नॉट बी रिजिड, एडमेंट, नहीं सर मैं यही करूंगा, आई विल नॉट गो फॉर दैट. तो फ्लेक्सिबिलिटी इज वन ऑफ द एट्रीब्यूट्स. वो काम में भी होनी चाहिए, आपके स्वभाव में भी होनी चाहिए.
देन टॉलरेंस, टॉलरेंस क्या होता है? मतलब एक आपके अंदर कोई क्षमाशीलता जिसे कहते हैं, दैट यू हैव सम टॉलरेंस, आप माफ करने के लिए भी तैयार होने चाहिए। किसी लेबर ने कुछ काम किया, कुछ गलती हुआ, कुछ नुकसान हुआ, या फिर उसके बाद बहुत बड़ा नुकसान है तो ठीक है, आप उसके लिए कमेटी बिठाओ, बट यू शुड बी ऑलवेज टेकिंग ऑल दीज थिंग्स इन अ वेरी गुड वे, tolerating for you as well as for the person who is in front of you. Then the competence, ये तो है एक क्षमता, योग्यता, ये तो आपके अंदर कूट कूट के भरी होनी ही चाहिए। एक बार में नहीं, वो हमेशा एक बार में भरने के बाद हमेशा के लिए रहती, ऐसा भी नहीं, उसमें एडिशन होते रहता है, होते रहना चाहिए। देन कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आज मैं सिविल इंजीनियरिंग का डिग्री किया हूँ तो मुझे कंप्यूटर साइंस का उतना ज़्यादा नहीं आना चाहिए, मेरे को नहीं आता है, ये एक्सक्यूज आजकल कोई ले नहीं सकता। कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज सच अ ब्रांच इन नॉलेज नाउ दैट इवन लैंग्वेज पीपल, कॉमर्स पीपल, आर्ट्स पीपल, स्पोर्ट्स वाले, सब लोग लैपटॉप और उस पे सॉफ्टवेयर और वो सब काम अच्छे अच्छे करते हैं, सोशल मीडिया का यूज। So this one is a very essential one. Now the logical thinking. Thinking आपकी कैसी होनी चाहिए? It should be based on a common sense, a logic. Illogical मतलब अतार्किक नहीं होना चाहिए, उसको कोई ना कुछ ऐसा लॉजिक होना चाहिए कि जो सबको समझ में भी आए और इट शुड बी वर्किंग ऑल्सो। देन इंजीनियरिंग प्रैक्टिस, एक बार जो किया उसको आप इंजीनियर करो। इंजीनियर करो मतलब उसको बार बार आपको करते आना चाहिए, उसी एक्यूरेसी से, उसी प्रिसीजन के साथ, दैट इज इंजीनियरिंग प्रैक्टिस। देन टेस्टिंग प्रैक्टिसेस, जैसे कभी हमारे साइट पर नया मटेरियल आता है, सीमेंट आया, स्टील आया, एग्रीगेट्स आए, सैंड हो या कोर्स एग्रीगेट्स, इवन हमारा पानी हम कंक्रीट में जो यूज करते हैं, वी शुड हैव अ हैबिट ऑफ टेस्टिंग ऑल दीज मटेरियल्स। वैसे ही कंक्रीट होने के बाद कास्टिंग ऑफ क्यूब करके कंक्रीट का स्ट्रेंथ चेक करना, टेस्टिंग प्रैक्टिसेस फॉर ऑल, नॉट ओनली मटेरियल, यू कैन ऑल्सो टेस्ट पीपल। जैसे आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, 2 साल हो गए, 2 साल में आपको ये लग रहा है कि मेरी जो टीम है सिविल इंजीनियर्स की आज कितना नॉलेज रखती है, तो यू कैन सडनली आस्क देम टू अपीयर एट वन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर, एमसीक्यू टेस्ट उनका ले लिया, भले 40-50 क्वेश्चंस का हो, but you can check their level of proficiency. So testing is a very good thing. Then you should be able to present before your client or before your owner या before your colleagues. आपका जो भी वर्क प्रोग्रेस है उसका अच्छे से प्रेजेंटेशन बनाइए, शुरू कब किया था, उसके बाद आज के डेट में प्रोग्रेस प्लानिंग में कितना हुआ था, एक्चुअल में कितना हो रहा है, डेफिसिट है तो उसके रीजंस क्या क्या है, आगे चल रहा है तो किस कारण आगे हो गया है, ये सब हमको प्रेजेंटेशन स्किल्स बनाने में यूज होता है। देन प्रोफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स, प्रोफिशिएंसी अगेन आई टोल्ड यू दैट इफिशिएंसी इज अ डिफरेंट थिंग। प्रोफिशिएंसी मतलब आगे मुझे कौन सी इफिशिएंसी से काम करना है, भविष्य में लगने वाला इफिशिएंसी को मैं पहले ही एक्वायर करता हूं, दैट इज कॉल्ड प्रोफिशिएंसी। that means it is a proactive behavior of a man, and therefore proficiency levels, अगर आगे चल के डिजाइन्स में ये सॉफ्टवेयर आने वाला है तो मैं उसको कैसे एक्सपर्टाइज करूं। एंड आफ्टर दैट द स्पेसिफिकेशंस एंड इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड्स, सो ये तो हमको बार बार मिलते रहते हैं, वी हैव गॉट दैट फ्रॉम इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स, मे बी दैट रेलवेज आर पब्लिशिंग देयर ओन स्टैंडर्ड्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, हाईवे अथॉरिटीज ऑल्सो पब्लिश देयर ओन स्टैंडर्ड्स, जैसे आईआरसी है, इंडियन रोड कांग्रेस है, इंडियन स्टैंडर्ड्स है, देयर मे बी सो मेनी एजेंसीज, इंडियन कंक्रीट इंस्टीट्यूट है, तो उनके स्पेसिफिकेशंस और जो क्वालिटी के लिए लोग आते हैं, फॉर एग्जांपल अगर रेलवे का काम मैं कर रहा हूँ, रेलवे का कॉन्ट्रैक्ट मैं करता हूँ, तो रेलवे का आरडीएसओ नाम का एक बड़ा स्टैंडर्ड वाला एक विंग है, रिसर्च डिजाइन स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, वो किसी भी काम के लिए उनके अपने स्टैंडर्ड्स लेकर के आते हैं और आपका काम उस स्टैंडर्ड्स के अनुसार हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये चेक करते हैं। तो वो अगर आ रहे हैं चेक करने के लिए तो वो चेक क्या करेंगे, उसके लिए मैंने पहले ही, मुझे तो कम से कम पता होना चाहिए कि वो स्टैंडर्ड क्या है, and therefore I have to have a knowledge of the specifications and standards.
उसके बाद ये कोड ऑफ इथिक्स होता है। कोड ऑफ इथिक्स मीन्स कि कौन सी चीजें लीगल है, कौन सी चीजें लीगल है, कौन सी चीजें ह्यूमन और कौन सी चीजें इनह्यूमन। एंड दीज आर by again virtue of your common sense you can classify, and therefore code of ethics is generally not a documented thing, it is there in practice. Then the technical standards, they are very well written. Before the work is started, there should be a contract document which is say having information about the specifications, standards. Then the design skills, measurement systems, साइंस फंडामेंटल्स, टीम वर्क, ये सब चीजें आपको समझ में आती है। ऐसा मैं समझ के इसको थोड़ा थोड़ा स्किप कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मेजरमेंट सिस्टम्स में आपका एसआई मेजरमेंट सब तरफ फॉलो होता है, लेकिन अगर यही आप मल्टीनेशनल कॉन्ट्रैक्टर हो और आपको अगर ग्रेट ब्रिटेन में काम मिल गया तो वहां की जो मेजरमेंट सिस्टम है उसको आपको सीखना चाहिए, एफपीएस। दैट इज वेरी सिंपल थिंग। Then teamwork. Teamwork matlab it is not any civil engineering huge project is not a single man's business. It is always a teamwork. तो आप भी एक one of the members of team हो, बाकी colleagues भी one of the members हैं, उनके साथ आपकी कैसी जमती है, पटती है, कहाँ आपको किसको छोड़ना है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्सन बहुत ही क्वालिफाइड है लेकिन बैड हैबिट वाला है तो उसको आप प्रायोरिटी नंबर 1 किसको दोगे, उसके क्वालिटी ऑफ वर्क को देंगे या बैड हैबिट को देंगे। इफ यू से लूज हिम यू विल बी लूजिंग एन एक्सपर्टीज। तो किस तरह टीम में काम करना है, किसी को टीज करके काम किया लिया जा सकता है उससे, किसी को एनकरेज करके, किसी को काम भले ही वो अच्छा नहीं कर रहा हो लेकिन फिर भी अच्छा काम कर रहा है ऐसा बोल बोल के काम किया जाता है, लिया जाता है। Here I can give you an example. In 1980s, there was a England cricket team captain. The name of him Mike Brearley. और उसके दो फास्ट बॉलर्स थे, बॉब विलिस और इयन बोथम। एक एंड से इयन बोथम बॉलिंग कर रहा था, दूसरे एंड से बॉब विलिस। बॉब विलिस बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहा था और इयन बोथम वाइड पे वाइड किए जा रहा था। लेकिन ये ब्रियरली है कि वो बोथम को एनकरेज कर रहा था, उनको उसको बता रहा था कि यू आर बॉलिंग द बेस्ट वे, बहुत अच्छी बॉलिंग आपकी हो रही है, और विलिस को उकसा रहा था कि आपकी बॉलिंग जैसे स्टैंडर्ड है उतनी नहीं आ रही है। ये साइकोलॉजिकल बिहेवियर होता है। ये टीम से अच्छा काम निकालने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाते हैं लीडर्स, यही प्रोजेक्ट मैनेजर ने भी सीखना चाहिए। देन एनवायरमेंटल कंस्ट्रेंट्स होते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर कोल्ड कंट्री में, फॉर एग्जांपल जम्मू एंड कश्मीर में आप काम कर रहे हैं, वहां कंक्रीटिंग करना है तो वहां कंक्रीटिंग के चैलेंजेस हैं। वहां आपको गर्म पानी होना जरूरी होता है, या सेटिंग सीमेंट का जो प्रॉपर्टी है उसमें जो प्रॉब्लम है उसके लिए सीमेंट का वैरायटी चेंज करना पड़ता है। तो इसी तरह, या इंडस्ट्रियल वेस्ट जहां ज्यादा नीचे मिलता है हमको, पाइल फाउंडेशन जैसे काम में, तो जहां अंदर हम जमीन के अंदर कंक्रीटिंग कर रहे हैं, देखा जा रहा है कि कास्टिंग कर तो जा रहे हैं लेकिन सेट नहीं हो रहा है, तो वहां पर क्या प्रॉब्लम है? बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट, सराउंडिंग एनवायरमेंट, ऑलरेडी द लैंड इज सो पोल्यूटेड इंडस्ट्रियली दैट योर कंक्रीट इज नॉट गेटिंग सेट प्रॉपरली। देन व्हाट टू डू? सोल्यूशन उसको क्या लेना चाहिए? सो देयर आर सर्टन प्रॉब्लम्स दैट विल बी ऑलवेज एड्रेस्ड बाय द प्रोजेक्ट इंजीनियर इन ऑलवेज अ डिफरेंट मैनर. Sometimes the experience can help, sometimes he has to go for a new logic. Then probability and statistics. जैसे 2 plus 2 in civil engineering is always not equal to 4. Probability क्या है कि 3.9 भी हो सकता है, 4.1 भी हो सकता है, भले 4 भी नहीं होगा। स्टेटिस्टिक्स को भी आपको लेके चलना है। कल अगर इतने लेबर ने काम किया था, ये आज उतने ही लेबर से काम हो जाएगा क्या? पता नहीं, क्योंकि एक आध लेबर का मूड खराब है, and therefore that is a probability. अनिश्चितताओं का भी ये काम होता है, and hence you should not always be rigid. Then administrative skills, managerial skills, आपके अंदर एक अच्छा खासा एडमिनिस्ट्रेटर और अच्छा मैनेजर और साथ में लीडर भी होना चाहिए। तो मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेटर और लीडर, ये तीनों अलग अलग बातें हैं, बट when a person becomes a successful project manager, you can find in him that he is a good administrator, he is a good leader, and he is also a good manager.
एडमिनिस्ट्रेटर मतलब वहां पे थोड़ा लीगल होना चाहिए, वहां कायदा कानून वो सब चलता है। मतलब अगर कोई लेट मार्क है जिसका 3 लेट मार्क है किसी एम्प्लॉय का, और रूल है ये है कि भाई आपका एक लीव खर्च होने वाला है, तो करना चाहिए। देयर यू शुड नॉट बी जस्ट लाइक से प्लीजिंग दैट पर्सन कि नहीं मैं कर आपका एक लीव वैसे बचाऊंगा, और बिकॉज दिस विल क्रिएट chaos in the company. Other people will also expect the same thing from you. Then manager मतलब managing क्या होता है? Managing of the client, managing of the owner, managing of the people, managing of the material, managing of the plant, managing of the time. ये इतने सारे challenging management के jobs हैं that the project in charge should be able to manage each and every stakeholder of the project, each and every non-living parameter of the project like time or resource or material resource, as well as the leadership skills. लीडर जो होता है उसका कहा सब लोग मानते हैं। अब हर कोई यूं ही तो नहीं मानेगा, जब तक वो फॉलोवर जो है वो आपके अंदर बिलीव नहीं करता, आपके हर कहा जो आपने जो है उसके ऊपर जब तक उसका बिलीफ नहीं आता तब तक वो मानता नहीं। तो ये कब होता है? इट हैज टू बी प्रूव्ड। Leader has to prove himself that he is really going to benefit the followers. He is going to really benefit the company, as well as the client will also get their job in time, on time. And therefore, leadership is a quality. ये बहुत सारे लोगों में होती ही है ऐसा नहीं, कहाँ से सीखी जाती है पता नहीं, बट जो करेज दिखाता है, जो अपने कंधों को मजबूत समझता है और एक जिम्मेदारी उसके ऊपर लेता है, पॉजिटिव एटीट्यूड से जो आगे चलता रहता है, भले उसमें कोई दिक्कत आए, कोई डिफिकल्टीज आए, डगमगाता नहीं है, उसके ऊपर ओवरकम करने के, प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के फॉर्मूले निकालता है, ढूंढता है। दैट मीन्स देर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन मेक योर सेल्फ अ लीडर. You cannot become in one night a leader. Neither you are a born leader. Many times leadership is acquired. बहुत कम लोग होंगे, 100 हजारों में एक आध बार, कि ये born leader है. Many times you will have to achieve it, you will have to acquire it, and that comes through some experience, some keen observations of different people, situation and all that. तो इसी एट्रीब्यूट्स, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने एक ग्रुपिंग में किया हुआ है। तो पहला ग्रुप है इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स का, जिसमें डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन आता है, जो टेक्निकल है पूरा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेस्टिंग प्रैक्टिसेस, प्रोफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स, स्पेसिफिकेशंस, कोड ऑफ एथिक्स, एनवायरनमेंट कंस्ट्रेंट्स एंड प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। सो ये सारा एक साइंटिफिक है, इसमें हम कुछ डेफिनेट कर सकते हैं, इसलिए इसका लिखा हुआ मटेरियल भी बनाया जा सकता है, जो कि गाइड होगा हर कंपनी एम्प्लॉय के लिए, इंजीनियर के लिए, ट्रेनीज के लिए। कोड ऑफ एथिक्स फॉर एग्जांपल, अगर आपने, मैंने तो कहा कि वो बहुत ज्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं मिलता, लेकिन अगर इफ यू ट्राई कि ऐसा ऐसा हम लिख करके हमारे कंपनी में एक कोड ऑफ कंडक्ट डॉक्यूमेंट नाम का डॉक्यूमेंट बनाया, तो बनाया जा सकता है। नेक्स्ट ग्रुप इज अबाउट द वर्किंग एटीट्यूड्स, कि हमारा एम्प्लॉय कैसा होना चाहिए, या एज ए प्रोजेक्ट इंजीनियर, प्रोजेक्ट इंचार्ज, he should be reliable, he should be approachable, he should be flexible, he should be competent, and he should be a very good presenter, both ways, either verbally or written way. Then management skills में हमारे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, लॉजिकल थिंकिंग है, इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस है, डिजाइन स्किल्स है, और टीम वर्क। टीम वर्क मैंने बोला आपको कि मैनेज करना होता है, लोगों को मैनेज करना होता है। Persons who are of a different opinion, if they are put on one task, the task may get spoiled. The persons of same nature and same thinking, complementary with each other, helping each other, they may be put on one particular task, and therefore you will get good results. So that is called management. जैसे कि अगर किसी आदमी को टाइम पास की आदत है, तो उसको आपने बाहर, साइट के बाहर का बैंक का काम करने के लिए भेजना नहीं चाहिए, क्योंकि आधे पौन घंटे के बैंक के काम को वो शायद 2 घंटा लगाए। दैट मीन्स दैट इज अ मैनेजमेंट स्किल। लॉजिकल थिंकिंग होता है कि भाई आप जो भी थिंकिंग करते हो, जो प्रेडिक्शंस है, दे शुड नॉट बी एबनॉर्मल,
they should be normally logical. Then engineering practices, you should have very good practices on the site and they should be properly engineered. Means everything, the practice should be same giving result. The same result is always had and it is good result always. Then design skills and the teamwork. So people who are in a team, they should be able to complement with each other, not fight with each other. और ये है पर्सनल, जैसे मैंने सबसे पहले बोला था आपको कि अगर मेरे पास दो वैकेंसीज है, मैं एचआर का बंदा हूं और 10 इंजीनियर्स मेरे पास आते हैं, उसमें से दो मुझे लेने हैं, तो सबसे सिंपल बात है कि मैंने मार्क्स देख लिए और पहला और दूसरा ले लिया। लेकिन उसमें ये सारा डिफिकल्टीज हो सकता है कि ये दोनों पंक्चुअल नहीं है, कमिटमेंट कम दिखाते हैं, इंटीग्रिटी बहुत कम है या कंसाइशियसनेस कम है। ये जो है मतलब काम पूरी अपनी जितनी भी डिवोशन लेवल है, समर्पण भाव से काम करने की जो एक टेंडेंसी है वो कम होना, टॉलरेंस, लीडरशिप, ये पर्सनल एटीट्यूड्स। ये जरूरी नहीं होता कि जो बंदा एकेडमिकली बहुत साउंड है, 100 में से 90% मार्क्स कमा रहा है, he may be missing out so many attributes out of this, and therefore you should have the proper assessment interview that is by the HR that is done, but it should be guaranteed by all the people जो भी चाहते हैं कि मैं एक अच्छा प्रोजेक्ट इंजीनियर बनना मेरा मकसद है। तो यू शुड बी पंक्चुअल, यू शुड बी कमिटेड, यू शुड बी having an integrity, you should be tolerance, there may be a level of tolerance with you, and leader. Then we have the technical and administrative skills. जैसे ये भी अगर पहले भी था वो रिटर्न और वर्बल आईटी में, तो इसमें भी है मेजरमेंट स्किल्स एंड टेक्निकल स्किल्स। एंड लास्टली इट इज द इंजीनियरिंग फंडामेंटल्स नॉलेज एंड द साइंस फंडामेंटल्स, ये भी बहुत जरूरी है। So finally, I can assure you that this is a presentation which was passing through different attributes, making you realize that you should have this in you. So to conclude, we have that attributes, a set of attributes, that you should be punctual, you should be committed, integrity should be possessed by you, honesty should be possessed by you, 100% engineering knowledge should be there, IT skills, science, and then reliability, flexibility, competence. So these are the set of parameters the industry expert, they will be always looking at you. और एक बार ये एक अच्छे लेवल पर आप लेके गए, if you are very highly punctual, highly committed, honest, then you are highly knowledgeable in engineering, तो वो दिन ज्यादा दूर नहीं होता जिस दिन कंपनी आपको एक पूरा का पूरा प्रोजेक्ट हैंडल करने के लिए जिम्मेदार समझकर एक जिम्मेदारी सौंपती। So here we can end, and if you have some doubts or if you want to interact, these are my details, contact details. You can feel free to write me mails or contact me on one of these two numbers. The first one is WhatsApp number. Also, you can put up your comments, questions in the comment box. So I hope you have enjoyed this presentation, and thank you.